Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to the second half of this lecture of the course of Mobile Ad Hoc Network. We are in week number 7 and this is second half of week number 7. In the first half we talked about a very important routing protocol for Mobile Ad Hoc Network. The name of the protocol was Dynamic Source Routing Protocol, or DSR in short. We elaborate DSR in details and we see how DSR functions in route discovery and route maintenance with the help of few examples. Actually जो routing protocols हैं जो कि propose किए गए हैं for mobile ad hoc network, इनको हम broadly 3 categories में divide कर सकते हैं. The first category is called the proactive routing protocol, जिसको हम table driven protocols भी कह सकते हैं. The second category is called reactive routing protocols or on demand routing protocol, while the third category is known as hybrid routing protocols. तो जो आपके पास DSR protocol था, यानी डायनामिक सोर्स रूटिंग प्रोटोकॉल, इट एक्चुअली इज़ एन ऑन डिमांड रूटिंग प्रोटोकॉल, या हम कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव है. रिएक्टिव इन द सेंस कि यहाँ पे सोर्स नोड के पास डेस्टिनेशन नोड की इंफॉर्मेशन नहीं होती, या किस तरह डेटा पैकेट सेंड करने हैं टुवर्ड द डेस्टिनेशन. द सोर्स हैज़ एक्चुअली नो information, no clue about the path towards the destination, so it actually discovered the path toward the destination. So we saw some examples of DSR. हमने देखा कि DSR में किस तरह हम path को डिस्कवर करते हैं और किस तरह by using control messages like route request and route response, and if the path is not available then route error by using route error control messages, and we see कि किस तरह route को maintain रखा जाता है inside DSR. So our final protocol of this series of network layer protocols for mobile ad hoc network is called ZRP, or Zone Routing Protocol. First point about ZRP protocol is that it is a hybrid routing protocol, right? So as I mentioned, we have 3 different categories: the proactive, the reactive and then the hybrid. इस सीरीज में पहले हमने proactive protocols के बारे में पढ़ा. Then we saw some protocols which uses the reactive or on-demand approach, and now it's time to talk about the last category of the routing protocols, and that is called the hybrid. Hybrid protocols is actually a combination sorry. Hybrid protocol is actually a combination of both the reactive and proactive protocols. यानी जो टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल्स थे या जो अप्रोच था और जो ऑन डिमांड अप्रोच था, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन किया गया है इन द हाइब्रिड रूटिंग प्रोटोकॉल्स. व्हाट डज दैट मीन? इट विल एक्चुअली कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स. यानी जो एडवांटेजेस रिएक्टिव के हैं उसको और जो एडवांटेजेस प्रोएक्टिव के हैं उसको, दोनों को कंबाइन किया गया है इन द हाइब्रिड रूटिंग प्रोटोकॉल अप्रोच, एंड ZRP इज वन ऑफ देम. सो इफ यू रिमेंबर, जो प्रोएक्टिव रूटिंग है, it actually uses a huge amount of bandwidth to maintain the routing information. Okay, किस तरह? प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा था कि प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स जो प्रोटोकॉल्स प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, दे एक्चुअली मेंटेन्ड अ कंप्लीट information about the updated topology of the network inside the routing tables, और ये routing tables हर एक नोड पे अवेलेबल होते हैं, अपडेट होते रहते हैं, और सच अप्रोच में हर एक नोड अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन दूसरे नोड्स के साथ वो शेयर करता रहता है
frequently, periodically, from time to time. सो इन केस ऑफ सच अप्रोच जो बैंडविथ है वो बहुत ज़्यादा हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल, बिकॉज द नोड्स नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर नेबर्स विद ईच अदर. इवन जब टोपोलॉजी में कोई चेंज आ जाए तो वो इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी broadcasted, that need to be disseminated to each and every node in the topology. So it will take a large amount of bandwidth. While on the other side, if we talk about the reactive routing protocol, तो उसका जो disadvantage है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास we are dealing with the long route request delay. रिमेंबर रिएक्टिव प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब कोई नोड, सोर्स नोड, किसी दूसरे नोड, डेस्टिनेशन नोड को कोई पैकेट सेंड करता है तो उस डेटा को सेंड करने से पहले से रूट डेस्टिनेशन की अवेलेबल नहीं होता. The source actually need to discover the route before sending the data by using the control packets that are communicated between the source, intermediate and the destination nodes, and it is a two-way process. उस केस में रूट एस्टेब्लिशमेंट, रूट मेंटेनेंस, रूट डिस्कवरी, इस प्रोसेस में ठीक ठाक टाइम लगता है. सो वहाँ पे डिले है. सो एक्चुअली दोनों अप्रोचेस के अपने प्लस और नेगेटिव हैं. सो द नेगेटिव ऑफ द प्रोएक्टिव इसके बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, वाइल ऑन द अदर साइड जो आपके पास रिएक्टिव अप्रोच है वहाँ पे डिले बहुत ज़्यादा है इन द प्रोसेस ऑफ रूट डिस्कवरी एंड आल्सो रूट मेंटेनेंस. सिमिलरली जो रिएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनका एक और डिसएडवांटेज भी है, एंड दैट इज़ के ये जो अप्रोच है इट एक्चुअली फ्लड द एंटायर नेटवर्क फॉर रूट डिटर्मिनेशन. आपने देखा था एग्जांपल में कि फॉर एग्जांपल एक नोड एस जो था जो डी को कोई मैसेज सेंड करने जा रहा था, तो डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करने से पहले इट एक्चुअली फ्लड द एंटायर नेटवर्क विद द रूट रिक्वेस्ट पैकेट्स. ठीक है. एंड देन आपने देखा था कि एक नोड को एक से ज़्यादा सेम मैसेज की मल्टीपल कॉपीज़ भी मिल रही थी, हिडन नोड प्रॉब्लम्स भी थे. सो एक्चुअली फ्लडिंग जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इनएफिशिएंसी जो है वो ज़रूर होगी. सो रिएक्टिव प्रोटोकॉल दे आर एक्चुअली inefficient in the sense के it will flood the entire network for the determination of the route from source toward destination. So now the protocol that we are studying here, the ZRP protocol, it actually aims to address the problems that we mentioned here by combining the best properties of both approaches. What does it mean? जो ZRP प्रोटोकॉल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स के डिसएडवांटेजेस को एड्रेस किया जाए, उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, और जो रिएक्टिव रूटिंग अप्रोच हैं उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, एंड देन कंबाइन द बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ अप्रोचेस इनटू अ सिंगल सॉल्यूशन, एंड द आउटपुट इज ZRP protocol. So ZRP actually address the So ZRP will actually address the problems of both reactive and proactive approaches, while on the same side, at the same time it will actually combine the best properties of both the protocols. Okay, now the zone routing protocol, is its name apply, it will use the concepts of zones. Zones normal life में आपको पता होगा कि किसे कहते हैं. Zone is like a circle. आपके फ्रेंड्स के सर्कल में कौन कौन है, that is your friend zone. आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है, that is your family zone. आपके क्लासमेट्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ योर मेट्स क्लासमेट जोन. सो इनको आप क्लस्टर भी कह सकते हैं टू बी मोर टेक्निकल.
तो जो आपके पास ZRP रूटिंग प्रोटोकॉल है, इट विल एक्चुअली फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन्स। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, या ZRP प्रोटोकॉल में क्या होगा? ZRP रूटिंग प्रोटोकॉल में हर एक नोड it will actually contain a separate routing zones। हर एक नोड का अपना एक जोन होगा, इन सिंपल वर्ड्स। और जो नेबर्स नोड्स हैं, it actually overlaps with one another। okay, so ZRP प्रोटोकॉल कंबाइन करता है एडवांटेजेस को, बोथ द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोचेस। और ZRP प्रोटोकॉल जो है वो जोन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। और जोन का कॉन्सेप्ट दैट इसके ZRP में हर एक नोड का एक जोन, एक सेपरेट जोन होगा। हर एक नोड के लिए हम एक सेपरेट जोन को स्पेसिफाई करते हैं। और जो नेबर्स नोड्स के जो जोन्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। नाउ जो रूटिंग जोन है इन द ZRP, एक्चुअली इट हैज़ अ रेडियस। सर्कल की हम बात कर रहे हैं, सो सर्कल हैज़ अ रेडियस, and the symbol which is normally used to represent the radius is from a Greek letter, I think it's rho. This radius is actually expressed in term of the number of hops। okay, तो अगर number of hops 1 है, so the value of this radius is going to be 1। अगर of number of hops को आप 2 consider कर रहे हैं, so definitely the value of the radius is also going to be 2। okay, so जो zone है, it actually includes the nodes whose distance from the source node is at most h hops। और h का मैंने आपको बताया ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, and so on। अगर if things are complicated, so let us see an example and let us clarify the concepts of the zone and ZRP। okay, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि we have a routing zone which is shown in the figure। ये रूटिंग जोन आपके ख्याल में किस नोड का हो सकता है? We have different nodes, the nodes are labeled from A to K, right? And we have only one circle, only one zone। आपके ख्याल में ये सर्कल, ये जोन किस नोड का हो सकता है? okay, so let me tell you the answer। this circle, this zone is for the node S। अब यहाँ पे आप देखें, इस सर्कल में, इस जोन में कौन कौन से नोड्स जो हैं वो इन सर्कल है, वो इन्वॉल्व्ड हैं। सो लेट अस सी, नोड A, नोड B, C, D, E, F, G, H and I। जितने भी नोड्स हैं, दे आर एक्चुअली इन द जोन ऑफ नोड S। ओके, अब एक नोड है विच इज़ नोड K एंड इट इज़ एक्चुअली आउटसाइड द रेडियस, आउटसाइड द जोन ऑफ S। सो क्या आप इस K को कह सकते हैं कि दिस इज़ also inside the radius, inside the zone of node S? No, actually it is not, because it lies outside the circle। ठीक है। Now the question is कि ये जो circle है, why it is like this? ये तो यहाँ पे भी हो सकता था ना, कि for example it can only consider the nodes A, B, C, D, E and F। और जो बाकी nodes हैं G, H, I and J, like के उनको भी हम सर्कल से बाहर रख लें, right? So that is also possible। To answer this question, you have to consider the value of the radius, okay, which is actually the number of hops। So in this case the number of hop is 2। यानी आप कह सकते हैं कि radius of this zone is 2। यानी वो सारे नोड्स जो कि S से
टू हॉप के डिस्टेंस पे है, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो अभी आप देखें वन हॉप पे कितने नोड्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, but you also have to consider the nodes that are actually 2 hops away from the source node. So ये जो G, H, I और J हैं, they are actually 2 hop away from the source. So they are also part of this zone. अगर आप R की वैल्यू को 3 कर ले तो क्या फिर K को हम S के जोन का नोड कह सकते हैं या नहीं? जी, if you change the value of R from 2 to 3, then what do you think? क्या उस केस में हम K को इसका इस जोन का पार्ट बना सकते हैं या नहीं? So actually if you change the value of R to 3, then K is also a node which will lie inside the zone of S. Okay, another concept related with this protocol is that जो nodes हैं inside a zone, उनको हम divide कर सकते हैं into two types. The first type is called peripheral nodes and the second is called the interior nodes. Okay, let me revise. इस प्रोटोकॉल में जो जोन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जितने नोड्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नोड या तो पेरिफेरल होगा इनसाइड द जोन या वो इंटीरियर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज के कौन से नोड्स पेरिफेरल्स कहलाएंगे और कौन से नोड्स इंटीरियर कहलाएंगे। सो द नोड्स हुज मिनिमम डिस्टेंस टू द सेंट्रल नोड is exactly equal to the zone radius, उनको हम peripheral nodes कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगी। इस एग्जाम्पल में आप देखें what is the radius, there is 2। अब कौन से नोड्स हैं जो कि exactly 2 hops के डिस्टेंस पे हैं from this source node। सो अगर आप A को देखें सो इसका डिस्टेंस 1 hop है, सो इसको आप peripheral node नहीं कह सकते। B again 1 hop, so it is also not a peripheral node. Similarly C, D, E and F. Okay, because the radius is 2 and their distance from the source node is only 1 hop, so इनको आप peripheral node नहीं कह सकते। Now अब आ जाए towards node G, H, I and J. Now let us see their distance from the source node. The distance of H is 2. The distance of I is 2, the distance of J is 2, the distance of G is 2. So in this particular example जो आपके पास peripheral nodes of S हैं, they are actually G, H, I and J. Okay, so कौन से nodes हमारे पास peripheral nodes कहलाते हैं जिनका जो मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स नोड, फ्रॉम द सेंट्रल नोड, फ्रॉम द नोड इन द क्वेश्चन वो एग्जैक्टली सेम हो टू द वैल्यू ऑफ द रेडियस, इनको हम पेरिफेरल नोड्स कह सकते हैं। अब अगर किसी नोड का डिस्टेंस वो रेडियस से कम है बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द जोन, दे आर कॉल्ड इंटीरियर नोड्स। ओके, फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E and F, they are example of interior nodes क्योंकि इनका distance from the source node या from the central node they is actually less than the value of the radius which in this case is 2. Okay, so हमने बात की peripheral nodes and interior nodes के बारे में और फिर एक्सप्लेन किया गया है कि जो फिगर यहाँ पे मेंशन है उसमें इंटीरियर नोड्स कौन से हैं और पेरिफेरल नोड्स कौन से हैं। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट द नोड के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट के? क्या ये हमारे पास इंटीरियर नोड है या ये हमारे पास जो है वो पेरिफेरल नोड है? सो एक्चुअली द आंसर इज़ वेरी सिंपल। ये ना तो पेरिफेरल नोड है और ना ही ये
इंटीरियर नोड है, बल्कि ये जोन का हिस्सा ही नहीं है, दैट इज आउटसाइड द द रेडियस सर्कल ऑफ द नोड. So you can't say K is peripheral or is anterior node. It is actually an outside node which lies outside the circle. एक और चीज़ and that is node H. Node H को अगर आप देखें, so it can be accessible by using two different routes. Sorry. इसको आप access कर सकते हैं from C and then H, or the second option is D, C and H. In one case the radius to reach here is, the number of hops to reach to H is 2, while in the other case the number of hop required to H is 3. So actually I will put a simple question here regarding the node H. Suppose करें हम इस path को follow करते हैं, S, D, C and then H. How many hops? 3. 3 is greater than 2. जिस तरह K तक पहुंचने के लिए हमें कितने hops चाहिए? 1, 2 and 3. So the situation is like same, the number are same, 3 hops and then 3 hops. So in this case आप कह सकते हैं कि जिस तरह K रेडियस से बाहर है, क्योंकि वहाँ पे तक पहुँचने के लिए वी नीड 3 hops, इसी तरह H को भी रेडियस से बाहर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं, सो यू विल नीड 3 hops in order to reach H, right? So the answer to this question is also very simple. हमने क्या करना होता है, हमने we have to consider the shortest path, because routing में क्या होता है कि we always go for the shortest path available. So इस केस में जो shortest path है, there is this one and there is 2 and 2 is equal to 2. So that is why अगर आप shortest path को consider करते हैं, which is obviously the case in routing, any routing protocol, so उस केस में H जो है that will lie inside the circle of node S. Okay. So final points about ZRP protocol, it actually divides the whole network into different routing zones. हमने सिर्फ एक जोन अभी देखा, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ईच एंड एवरी नोड विल हैव इट्स ओन जोन. ओके, सो हर एक नोड के अराउंड ईच नोड ZRP डिफाइंस अ जोन, और उसके रेडियस को हम मेजर करते हैं इन द नंबर ऑफ हॉप्स. ओके, दैट इज क्लियर. अब द क्वेश्चन इज के हमने स्टार्ट में कहा था कि ZRP कंबाइन करता है द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ बोथ द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स. नाउ द क्वेश्चन इज कि कहाँ पे प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करेंगे ZRP के अंदर, और कहाँ पे रिएक्टिव प्रोटोकॉल को हम यूज़ करेंगे ZRP के अंदर. लेट इट पुट इन अनदर सिंपल वे, सर्कल के अंदर कौन सा अप्रोच होगा और सर्कल के बाहर कौन सा अप्रोच होगा. और इससे भी अगर सिंपल बनाना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पैकेट C के लिए है, H के लिए है, तब कौन सा अप्रोच होगा, और अगर कोई पैकेट K के लिए है तब कौन सा रूटिंग अप्रोच हम फॉलो करेंगे इनसाइड ZRP. सो जो अप्रोच ZRP फॉलो करता है दैट इज लाइक दिस, कि हर एक नोड विल एक्चुअली यूजेस अ प्रोएक्टिव रूटिंग विद इन इट्स जोन एंड रिएक्टिव रूटिंग आउटसाइड इट्स जोन. ओके, जोन के अंदर प्रोएक्टिव टेबल ड्रिवन, जोन के बाहर रिएक्टिव ऑन डिमांड रूटिंग प्रोटोकॉल्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ पैकेट फॉर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, any of this node from source node S, then you will be using proactive routing protocol. However, if you want to send a packet towards K which is not in its zone, then the approach that this protocol will follow is reactive approach. So in summary, inside the zone proactive, while outside the zone reactive approach is used by the ZRP. Okay, so proactive within the zone का मतलब है कि
विद इन द जोन हर एक नोड को पता होगा अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ रूट टू ऑल द नोड्स विद इन इट्स जोन। प्रोएक्टिव में क्या होता है, हर एक नोड के पास एक रूटिंग टेबल होता है जिसमें कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन अपडेटेड फॉर्म में एनी टाइम पे अवेलेबल होती है। सो ZRP की अगर हम बात करें, विद इन द जोन हर एक नोड के पास किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड फॉर्म में अवेलेबल होगी। लेकिन अगर कोई नोड है, फॉर एग्जांपल कोई नोड है, उसके पास कोई डेटा है फॉर अ पार्टिकुलर डेस्टिनेशन और उसको पता नहीं है कि ये डेस्टिनेशन जोन के अंदर है या जोन के बाहर है, मैंने प्रोएक्टिव पे जाना है या रिएक्टिव पे जाना है, तो सबसे पहला काम ये नोड क्या करेगा बाय यूजिंग ZRP प्रोटोकॉल? द फर्स्ट थिंग इट नीड्स टू डू इज टू चेक्स इट्स रूटिंग टेबल फॉर अ रूट। अगर रूटिंग टेबल से इसको पता चला कि जो डेस्टिनेशन नोड है दैट इज विद इन द जोन, तो इसका मतलब है कि एक रूट पहले से अवेलेबल है जो कि रूटिंग टेबल के अंदर ही है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन नोड जोन के अंदर नहीं है तो जो नोड है वो सर्च करेगा एंड देन इट विल specify a route towards the destination. Actually it will discover the route to reach to the final destination. So in summary, अगर कोई नोड है और उसके पास कोई पैकेट है और वो पैकेट वो सेंड करने जा रहा है टूवर्ड डेस्टिनेशन, बाय यूजिंग ZRP प्रोटोकॉल सबसे पहले इट विल कंसल्ट इट्स रूटिंग टेबल। अगर डेस्टिनेशन नोड रूटिंग टेबल के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि द नोड इज़ इनसाइड। अगर रूटिंग टेबल के अंदर एंट्री है तो इसका मतलब है कि द नोड इज़ इनसाइड द जोन, सो इट विल सेलेक्ट द प्रोएक्टिव। लेकिन अगर डेस्टिनेशन नोड जोन के अंदर नहीं है, सो नोड क्या करेगा? अल्टरनेटिव्स, इट विल फाइंड a route, a specific route. It will discover a route toward the final destination. अगर inside the zone है, कंसल्ट करो रूटिंग टेबल को। अगर आउटसाइड द जोन है, गो फॉर द रिएक्टिव एंड डिस्कवर अ रूट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच हम यूज़ करते हैं फॉर रूटिंग इनसाइड द जोन, it actually improves the quality of discovered routes by making them more sensitive to change in network topology. यानी अगर इनसाइड द जोन नोड्स मूव करते हैं, टोपोलॉजी उसकी चेंज होती है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो इस पे भी पड़ता है कि जो आपके पास नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है अगर वो चेंज होती है तो डेफिनेटली प्रोएक्टिव अप्रोच में उन चेंजेस को हम जो है वो एकमोडेट करते हैं इनसाइड द रूटिंग टेबल्स। सो आपके पास किसी भी टाइम पे लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द टोपोलॉजी वो अवेलेबल होती है। ओके, सो ZRP प्रोटोकॉल में एक ही पैरामीटर हम यूज़ करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रेडियस एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ हॉप्स। सो दिस वाज ZRP in theory. Let us see a working example of ZRP. That is very simple. So ZRP actually it is based on the concept of zones. इस तरह मैंने बताया कि हर एक नोड का एक जोन होगा और हर एक जोन का एक रेडियस होगा, और जो रेडियस है उसको हम एक्चुअली मेजर करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ हॉप्स। और जो नेबर्स नोड्स के जो जोन्स है वो एक्चुअली आपस में ओवरलैप करेंगे, राइट। सो ZRP प्रोटोकॉल द बेसिक कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द जोन्स। हर एक नोड का एक जोन होगा, हर एक जोन का एक रेडियस होगा, और उस रेडियस की वैल्यू जो है दैट इज़ काउंटेबल एज अ नंबर ऑफ हॉप्स। तो अगर रेडियस की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि ऑल द नोड्स दैट आर रीचेबल बाय यूजिंग 1 और 2 हॉप्स। अगर 3 है तो ऑल द नोड्स दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम द सोर्स नोड बाय यूजिंग 1 हॉप, बाय यूजिंग आइदर 1 हॉप, 2 हॉप और 3 हॉप्स। और जो नेबर्स के जो नोड्स के जो जोन्स हैं वो आपस में ओवरलैप होने चाहिए या ओवरलैप करते हैं।
अब चूंकि ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है तो ये प्रोएक्टिव को भी यूज़ करता है और रिएक्टिव को भी यूज़ करता है। प्रोएक्टिव विद इन द जोन्स, रिएक्टिव आउटसाइड द जोन। सो प्रोएक्टिव अगर है तो नियर बाय लोकेशंस डेस्टिनेशंस है 1/2 या 2/2 के डिस्टेंस पे हैं, सो डेफिनेटली दे आर मोस्ट लाइकली टू बी सेंड to send to nearby location located destinations। और अगर ये अप्रोच प्रोएक्टिव अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं तो जो टोपोलॉजी मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज़ एक्चुअली लिमिटेड टू द जोन एंड इट रिड्यूस्ड। यानी जोन के बाहर आप मेंटेन नहीं रखते टोपोलॉजी को, यू ओनली फोकस ऑन मेंटेनिंग द टोपोलॉजी दैट इज़ इनसाइड द जोन। और जो रिएक्टिव अप्रोच है जो कि हम यूज़ करते हैं आउटसाइड द जोन, it actually uses local topology information। यहाँ पे सारे नोड्स रिक्वायर्ड नहीं होते in order to, जिस तरह हमारे पास प्रोएक्टिव में होता है कि हर एक नोड के पास रूटिंग टेबल होता है, रिएक्टिव में ये नहीं है। रिएक्टिव में आपको पता है ऑन डिमांड है। अगर कोई नोड किसी नोड को दूसरे नोड को पैकेट सेंड करने जा रहा है एंड द नोड इज़ इनसाइड द जोन, सो एक्चुअली इट विल डिस्कवर द रूट। The route is discovered on demand when it is needed. Not all the nodes are actually queried। यहाँ पे जो zones पे अभी हम देखेंगे कि जो border पे जो nodes होते हैं only they are consulted to rebroadcast and send the route request to the border of the zone। So let us see an example। This is actually the same topology, but this one is more beautiful because it has much more attractive colors। Okay, so we have the same number of nodes, same topology, same radius। Here the radius is 2, so it means कि actually जो source node है which is S, जो हमारे पास node in question है या जो central node है, बाकी सारे nodes इससे या तो 1/2 के distance पे हैं like A, B, C, D, E and F, या 2/2 के distance पे हैं like G, H, I and J। फिर हमने बात की थी पेरिफेरल नोड्स की और इंटीरियर नोड्स की। सो जिनका रेडियस, जिन नोड्स का डिस्टेंस और रेडियस के इक्वल हो वो आपके पास पेरिफेरल्स हैं, और जिन नोड्स का डिस्टेंस या हॉप काउंट वो रेडियस से कम हो वो आपके पास इंटीरियर हैं। सो दीज आर योर पेरिफेरल नोड्स एंड दीज आर योर इंटीरियर नोड्स, एंड दिस इज द नोड विच लाइज आउटसाइड द जोन ऑफ एस। Okay, now we want to send a packet from S to X। Source is S while the destination is X, and they are actually, our radius is 2। So आप देख सकते हैं कि this is not actually inside the zone of S। तो कौन सा अप्रोच हम यूज़ करेंगे फॉर रूटिंग, आइदर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? जी वेल, प्रोएक्टिव इज़ यूज्ड इनसाइड द जोन। चूँकि ये जोन से बाहर है ये डेस्टिनेशन नोड, सो एक्चुअली वी विल गो फॉर रिएक्टिव अप्रोच। सो अगर आप इसके रेडियस को ड्रॉ कर ले, सर्कल को ड्रॉ कर ले, यू विल सी के एक्स इज़ नॉट विद इन द जोन ऑफ एस। सो एक्चुअली हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर रिएक्टिव। और रिएक्टिव में जिस तरह मैंने आपको बताया कि सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू सेंड द मैसेज ओनली टू द सेलेक्टेड नोड्स एंड द नोड्स दैट लाइज एट द बॉर्डर्स। जो पेरिफेरल नोड्स हैं उनको आप क्या करते हैं, रूट डिस्कवरी का मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और बाकियों को आप इग्नोर करते हैं। सो ZRP का ये फ़ायदा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, फ्लडिंग को मिनिमाइज़ कर रहे हैं। आप सारे नोड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यू ओनली सेलेक्ट द नोड्स दैट आर एट द बॉर्डर ऑफ दिस सोर्स नोड। ओके, सो जैसे ही यह मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है और बॉर्डर नोड्स को मिलता है, सो हेयर यू सी के आपके पास जो बॉर्डर नोड है which is going to be responsible for forwarding the packet is I। तो अगर आप I के जोन को देख लें, सो अब ये क्या करेगा, अब ये देखेगा कि जो नोड है डेस्टिनेशन दैट इज़ X वो इसके सर्कल में नहीं है। अगर होता तो ये क्या करता, प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करता, लेकिन चूंकि इसके भी सर्कल में नहीं है, सो दिस नोड इज़ आल्सो गोइंग टू सेलेक्ट रिएक्टिव अप्रोच। ये क्या करेगा, अपने बॉर्डर नोड्स को सेलेक्ट करेगा
इसके बॉर्डर नोड्स कौन कौन से हैं? F, S, D, T, R and Q. इसको तो इग्नोर कर लें क्योंकि इसको तो इससे मिला था. So actually the message will goes to T, R and Q. Now the node at question is T. ठीक है. रूटिंग टेबल T देखेगा. रूटिंग टेबल कंसल्ट करने के बाद उसको पता चलेगा कि जो डेस्टिनेशन है वो तो इसके जोन के अंदर है, राइट? यानी अब ये रिस्पॉन्सिबल है रिप्लाई देने के लिए, हे जिस नोड को आप सर्च कर रहे हैं वो तो मेरे जोन में है, सो यू कैन सेंड द पैकेट टू मी एंड आई विल फॉरवर्ड द पैकेट टुवर्ड द डेस्टिनेशन. तो ये रिप्लाई करेगा जिससे इसको रिक्वेस्ट मिली थी, दैट इज आई, एंड देन आई विल इन्फॉर्म द एस, हे सेंड द पैकेट टू मी, I will send the packet to T, and then T will deliver the packet to X because X is inside the zone of T. So this is how we send a packet between two nodes in the case in which the source and destination are not in the same zone. And this was about ZRP hybrid routing protocol for mobile ad hoc network. तो यहाँ पे आके नेटवर्क क्लियर हमारा ख़त्म हो जाता है. हमने बहुत सारे रूटिंग के प्रोटोकॉल्स देखे फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. एक्चुअली वी स्टडीड प्रोटोकॉल्स फ्रॉम ऑल द 3 अप्रोचेस. हाइब्रिड का भी हमने देखा, प्रोएक्टिव का भी देखा और रिएक्टिव का भी देखा. कुछ एग्जांपल्स एंड सम फेमस प्रोटोकॉल फ्रॉम ईच एंड एवरी कैटेगरी फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. इंशाल्लाह कमिंग वीक में वी विल स्टार्ट discovering about the transport layer के ट्रांसपोर्ट लेयर पे इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन से हैं और क्या जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं क्या वो हम एज इट इज़ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं या नहीं. ओके, नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.